Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up case scenario number 9 and 10. In case you have not seen the previous videos, you can check out the description box below. I have given the link over there. You can find out all the playlist links there. We have covered the audit MCQs also. In case you have not seen that, please check out the description box below. So let's begin with the case scenario number 9 without wasting any further time. Blessed with both artistic and business approach, Debosmita and Divyanshi, putting their best foot forward, entered in India's 2000 crore fragrance market by floating Daffodils Perfumes and Scent Limited in the year 2000 year. तो उन्होंने एक कंपनी बना ली है which is a public company. Okay. With an authorized capital of 30 crores, along with them there were 10 other family members who became the subscribers to the memorandum of association. It goes without saying that the trio were the first directors of the company. Having registered office at Kanauj, the perfume capital of India, Uttar Pradesh, DPSL focused on natural fragrances and made perfumes from flowers, camphor, saffron and other aromatic substances. In the very next year, during April 2009, Anirudh, a qualified chartered accountant and financial advisor, was appointed to head the finance department of the company. After the promulgation of the Companies Act 2013, his appointment was regularized as the CFO. Okay, so the CA became a CFO also under the relevant provisions of the requirement of appointment of KMP. Okay. Knowing the fact that perfumes have emerged as an essential product driven by growing trend of personal care and forming part of everyone's pride as well as confidence, they roped in Devpriya, a smart market analyst, and Divya, an IT professional, as directors at the time of conducting the AGM on 25th of September 2010. The company was doing well and its yearly turnover was increasing gradually. As on 31st March 2019, DPSL yet to be listed. Okay, so यहाँ पर clear हो गया कि it is a unlisted public company. कब तक? 31st March 2019. पेड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है? 15 करोड़. 355 शेयर होल्डर्स हैं. फ्री रिजर्व्स जो हैं एज ऑन डेट वो 12 हैं. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर डिटेल लिख लेते हैं, 15 करोड़ है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास शेयर होल्डर्स 355 हैं, ठीक है. फ्री रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्री रिजर्व्स हैं 12. फिर हमारे पास डेट्स कितने हैं? डेट्स हैं 2 करोड़ और हमारी जो टर्नओवर है वो है 85 करोड़. ये डिटेल अभी तक हमें दी हुई है. Based on the audited financial statements as on 31st March 2019, when paid up share capital exceeded the threshold limit, 4 independent directors, namely Rajan, Rahul, Ranjit, Rema, were appointed in April 2019. तो चलो डिस्कस करते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बोलते हैं. सेक्शन 149. सेक्शन 149 क्या बोलता है? अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंडेटरी हैं, ठीक है. अगर मैं बात करूं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी कितने? एटलीस्ट 1/3. अब अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में वी हैव टू सी दी थ्रेशोल्ड लिमिट. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? पेड अप अगर आपकी एक्सीड कर जाती है मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़ या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, इनमें से कोई भी लिमिट एक्सीड हो जाती है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड, ठीक है. इसमें लेकिन एक्सेप्शन है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी या डोरमेंट कंपनियां. बट यहाँ पर सिंपल दे रखा है लिमिट्स देखें तो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट एक्सीड कर रही है 10 करोड़. फिर हमारी बोरिंग्स की लिमिट क्या होती है? 50 और उसकी क्या होती है? टर्नओवर की 100. तो यहाँ पर देखें तो उसकी लिमिट एक्सीड कर चुकी है किसकी? पेड अप शेयर कैपिटल की. तो डेफिनेटली दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे? एटलीस्ट 2. उसने कितने अपॉइंट कर दिए? 4. तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं. मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 थी, ज़्यादा अपॉइंट कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. सेक्शन का कंप्लायंस कर रहे हैं. Prior to the above development, Anirudh, the CFO of the company, took early retirement in December 2018. However, तो December 2018 में अनिरुद्ध CFO ने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है. However, in one of the board meetings held on 25th of June 2019, that is after almost 6 months, Dev expressed his desire to again engage Anirudh by appointing him as the independent director. Okay.
तो उसको क्या अपॉइंट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर 2019। इन एडिशन टू ऑलरेडी अपॉइंटेड 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो उनको लग रहा है कि 4 काफ़ी नहीं है, एक और को अपॉइंट कर लेते हैं। और एक बात बताओ, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं कि कौन कौन बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो उसके अंदर एक पॉइंट था कि कोई भी पर्सन जो कि खुद या उसका कोई रिलेटिव कोई पोजीशन होल्ड करता है या करता था एज अ KMP या फिर एज एन एम्प्लॉई इन दी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी इन एनी ऑफ द 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed, then in that case he is not eligible to become a independent director। पर यहाँ पर अगर हम देखें मिस्टर अनिरुद्ध को, मिस्टर अनिरुद्ध जो थे वो दिसंबर 2018 में उसने रिटायरमेंट लिया है, तो तब तक तो वो CFO था मतलब KMP था। KMP था इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी का KMP रह चुका है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द लास्ट 3 financial years के अंदर। तो इस केस में क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? 25 जून 2019 की मीटिंग में जो डिसाइड करने का वो सोच रहे हैं कि करंट ईयर 2019 में उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लेते हैं, तो क्या वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ही इज डिस्क्वालिफाइड। अच्छा, अगर ये रिलेटिव होता और रिलेटिव प्लस एम्प्लॉई होता, एम्प्लॉई भी पिछले 3 financial years के अंदर, नॉट करंटली एन एम्प्लॉई, तो उस केस में हम इसको फिर भी कंसिडर कर सकते थे एज टू मेक हिम दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि एक प्रोवाइजो दे रखा था कि अगर कोई रिलेटिव है प्लस वो एम्प्लॉई था ड्यूरिंग द लास्ट 3 financial years, नॉट एन एम्प्लॉई करंटली, ध्यान रखना इस चीज को, रिलेटिव प्लस पास्ट 3 financial years के अंदर ही वॉज एन एम्प्लॉई, तो उस केस में वी कैन कंसिडर हिम मेकिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट ये बंदा तो भैया KMP था, एंड KMP भी खुद की बात हो रही है ना कि रिलेटिव की, खुद एक KMP था। KMP के साथ साथ अभी इसको 3 financial years भी कंप्लीट नहीं हुए हैं KMP बने हुए, तो डेफिनेटली ही कैन नॉट बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वेरी मच क्लियर। चलो, as of now the articles of association provide for the payment of sitting fee of 40,000 to each non-independent directors of the company for attending the board meeting और committee meeting। तो आपको सिटिंग फीस का पता होगा, मैक्सिमम कितनी पे कर सकते हो? 1 लाख रुपीज़। 40,000 पे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी सिटिंग फीस की बात आती है तो सिटिंग फीस पेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड वुमेन डायरेक्टर्स शुड नॉट बी लेस दैन टू वॉट इज बीइंग पेड टू दी अदर डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती, बट ज़्यादा भी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम अप टू 1 लाख। ये प्रोविजंस थे। चलो, The audited financial statements as on 31st March 2019 also required constitution of audit committee section 177, क्योंकि अभी तक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो SEBI LODR तो नहीं लग रहा, तो लेकिन सेक्शन 177 के हिसाब से उनके ऊपर प्रोविजन लग गया। क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्राइटेरिया होते हैं ना, वही सेम क्राइटेरिया आपका सेक्शन 177 में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए इसके ऊपर ऑडिट कमेटी के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। अकॉर्डिंगली इन अप्रैल 2019 ऑडिट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विच कंप्राइज देव एंड देवस्मिता एज नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं कि देयर आर 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द ऑडिट कमेटी एंड देयर आर सर्टेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कितने हैं वो नहीं बताया, ठीक है। इट केम टू द लाइट ऑफ द कंपनी। देखो, अभी आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 177 क्या कहता है। सेक्शन 177 कहता है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बट ऑडिट कमेटी के अंदर अगर मैं प्रोविजंस की बात करूं तो एटलीस्ट जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, दे शुड फॉर्म मेजॉरिटी इन द मीटिंग। मेजॉरिटी होनी चाहिए, कमेटी मेंबर्स में मेजॉरिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। 3 एटलीस्ट मेंबर्स होने चाहिए फॉर्मिंग दी मेजॉरिटी। तो अगर सपोज 3 ही मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी के, तो 3 में से 2 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होने चाहिए, ऐसा सेक्शन 177 कहता है। बट लेट्स सी क्या क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इट केम टू लाइट ऑफ द कंपनी दैट it came to light that company was sitting on crore of rupees in terms of cash bank balance due to pandemic COVID-19 and subsequent lockdown in the country. The production almost came to standstill. The demand dived southwards. As there was not much to invest in terms of new projects, the board of directors thought of to provide investors an opportunity to exit from their investment in the company. Accordingly, in a duly convened board meeting which was held on 25th of August 2020, the directors proposed a buyback of equity shares, keeping in view the relevant clause of the articles providing for the said buyback. तो आपको पता होगा सेक्शन 179 के अंदर मेंशन्ड है पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें बोला हुआ है कि जब भी आपको बायबैक करना है तो आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके ही बायबैक कर सकते हो। सर्कुलेशन के थ्रू आप रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बायबैक आपका मोर देन 10% होता है,
बायबैक का जो अमाउंट है वो मोर देन 10% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स होता है, तो उस केस में आपको एसआर पास करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये सब आप तब कर पाओगे जब आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइज किया हुआ है बोर्ड को कि बोर्ड ये काम कर सकता है, वो बायबैक कर सकता है। तो बेसिकली एओए सबसे बड़ा है। पहले एओए में देखो क्या ऐसा कोई क्लॉज है या नहीं। अगर क्लॉज है तो फिर आप चेक करो कि जो बायबैक हो रहा है वो कितने अमाउंट का हो रहा है। अगर अमाउंट उसका 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा का है देन यू आर रिक्वायर्ड टू हैव एसआर, एंड अदरवाइज बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास होगा दैट विल बी पास्ड इन द मीटिंग ओनली, सर्कुलेशन के थ्रू यू कैन नॉट पास। ठीक है, ये सेक्शन 179 ने बताया हुआ है। चलो, अकॉर्डिंग टू द बाकी जो बायबैक होगा वो बायबैक कौन से सेक्शन के हिसाब से होगा? बायबैक का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 68 है। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो देव एक्सप्रेस हिज डिजायर टू अगेन एंगेज अनिरुद्ध बाय अपॉइंटिंग हिम एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यूरिंग द करंट ईयर 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अनिरुद्ध एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो आप कर ही नहीं सकते, डिस्क्वालिफाइड है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। नाउ अनिरुद्ध कैन बी अपॉइंटेड, काट दो, पढ़ो मत आगे, जब गलत ऑप्शन हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही। अनिरुद्ध कैन बी अपॉइंटेड, काट दो, कैन बी अपॉइंटेड, काट दो। करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, रीजनिंग में आपको पहले दे चुकी हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द केस सिनेरियो दैट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर बीइंग पेड सिटिंग फीस ऑफ 40,000 फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द सिटिंग फी पेबल टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग। तो यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए बताओ, तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 40,000 नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो चल जाएगा, बट दैट टू मैक्सिमम 1 लाख। Sitting fees payable to independent directors per meeting shall not be less than 40,000. Sitting fees payable to independent directors should not be less than 75%, 65%, 50%. 3 ऑप्शन का रहता है। कम से कम तो 40%, 40,000 होगा ही होगा, 40,000 नॉट 40%, कम से कम तो 40,000 होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। The case scenario states that in a duly convened board meeting which was held on 25th of August 2020, the directors of DPSL proposed buyback of equity shares keeping in view the relevant clause of the articles providing for the said buyback. In case the articles of the company did not contain any clause providing for buyback, then which of the following options is applicable in such a situation? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। तो आर्टिकल्स ऑफ DPSL are required to be altered for including a clause which authorizes the buyback. सही लग रहा है अभी तक? There is no need to alter the articles to provide for buyback if any 2 directors attending the related board meeting vote in favor of buyback. बिल्कुल नहीं। There is no need to alter the articles to provide for buyback if any 3 of the directors. There is no need to alter the articles. गलत, करना पड़ेगा ऑल्टर, बिना करे नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोवाइजो गिवन है सेक्शन 179 में कि जब भी बोर्ड अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू बायबैक, दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस जो एओए में मेंशन है। तो एओए को तो आप नहीं छोड़ सकते किसी भी एंगल से। According to the case scenario, the audit committee constituted at DPSL comprises Dev and Devusmita as non-independent directors besides certain independent directors. Minimum how many independent directors might have been included in audit committee? There are two non-independent. तो basically कह रहे हैं 2 आपके पास non-independent directors हैं। तो बताओ कि independent directors आपको minimum कितने चाहिए? मिनिमम कितने चाहिए? मेजॉरिटी फॉर्म करने चाहिए। तो अगर आपका 50%, अगर मैं देखूँ 50% से ज़्यादा होने चाहिए, तो 50% से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 नॉन इंडिपेंडेंट हैं तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, विच मीन्स 3, 5। तो टोटल कितने? अगर 5 आपके ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं तो 5 में से अगर आपके 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं तो दे आर फॉर्मिंग द मेजॉरिटी। यस, तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 3। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सेक्शन 177 कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड फॉर्म मेजॉरिटी इन द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में कह रहे हैं कि आपको नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बता दिया उन्होंने कि 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाने के लिए आपको कितने मेंबर्स चाहिए? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए? 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट की हो जाएगी। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है यहाँ तक? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज DPSL resorts to buyback of its equity shares after fulfilling all the legal formalities. Post buyback, what is the ratio that DPSL shall be required to maintain between the aggregate of secured and unsecured debts owned by it and its paid up share capital and free reserves? तो ये ना IPCC का क्वेश्चन है, सेक्शन 68। ये आपको रेशियो मेंटेन करनी होती है 2:1। तो post buyback the DPSL shall be required to maintain a ratio of 2:1 between the aggregate of secured and unsecured debt
तो डेट इक्विटी रेशियो आपकी कितनी होनी चाहिए? 2:1। ये तो ये IPCC लेवल का क्वेश्चन था, ये हमारी बुक्स में नहीं है, पता होना चाहिए फिर भी हमें। पोस्ट बायबैक DPSL शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रेशियो ऑफ 3:1 नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या है? 2:1। 4:1 भी नहीं है, 5:1 भी नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस सिनेरियो। केस सिनेरियो नंबर 10। XYZ Auto Limited, an unlisted company, तो unlisted public company, is engaged in the manufacturing of auto components and spare parts. Its registered office is situated in Chennai, Tamil Nadu, and its branches are located in metropolitan cities, that is Delhi, Mumbai, Kolkata. Following information is available from its audited financial statements. पहला है 2017, 18, 19, 19-20। पेड अप शेयर कैपिटल 1500, टर्नओवर आपकी इंक्रीज हो रही है हर साल, बोरोइंग्स आपकी कम हो रही हैं, डिबेंचर्स आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या दे देंगे। ABC लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, तो ये भी क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। Engaged in the business of transport and logistics and has its registered office in Mumbai. ABC Limited purchased all the shares of XYZ Limited in April 2019 and became its holding company. तो यहाँ पर कह रहे हैं ABC कंपनी है, ABC Limited, इसकी 100% शेयर होल्डिंग है XYZ के अंदर, तो ये क्या हो गई? इसकी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, there are 900 shareholders and 400 debenture holders. Following information is available from the financial statements of ABC Limited. तो पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो आपको दी हुई थी XYZ Limited की, ये XYZ Limited की दे रखी थी, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ ABC Limited। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स दी हैं? ये भी 17, 18, 18, 19 3 सालों की डिटेल्स दे रखी हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20। पेड अप शेयर कैपिटल सेम है, टर्नओवर आपकी बढ़ती जा रही है और आपके लोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं और आपके डिबेंचर्स सेम है। चलो, सुमित एंड सुमेधा द डायरेक्टर्स ऑफ ABC लिमिटेड ऑल्सो हैपन टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ EFG लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, तो ये भी क्या है? एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अभी तक 3 कंपनीज आई हैं, XYZ, ABC एंड EFG, तीनों की तीनों क्या है? अनलिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं। ठीक है, however in April 2019 they exited from EFG Limited as directors। ठीक है जी, अप्रैल 19 में छोड़ दिया। The turnover of EFG Limited it amounted to 110, 99 and 95 and 91 crores respectively, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। ओके, टर्नओवर का अमाउंट दे रखा है ग्रेजुअली, तो हाईलाइट कर लेते हैं कि ये टर्नओवर के अमाउंट्स हैं। इसके बाद हमें दे रखा है देयर वाज अ डिक्लाइन इन टर्नओवर ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रॉपर कैंपेनिंग, employees unrest from time to time also responsible for the following turnover. The total paid up share capital of EFG Limited is 9.5 crores throughout the period। तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें एक पेड अप शेयर कैपिटल की डिटेल दे रखी है। ठीक है, now EFG Limited is continuing with the audit committee which was constituted earlier। तो अगर आपको पता होगा ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट सेक्शन 177 के अंदर दी हुई है कि अनलिस्ट, क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इसकी बात करें तो पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। तो आपको एटलीस्ट उस केस में ही इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है, 3 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 में से भी मेजॉरिटी आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। ये चीज़ें सेक्शन 177 के अंदर लिखी हुई हैं। सेक्शन 177 एक चीज़ और कहता है कि अगर आपकी ऑडिट कमेटी की जो लिमिट्स हैं वो 3 साल तक आपकी सेम नहीं, मतलब आपकी 3 साल तक एप्लीकेबिलिटी नहीं बन रही, तो आप तब तक ऑडिट कमेटी को फॉर्म नहीं करोगे, या आपके पास चॉइस है, आप ऑडिट कमेटी को तब तक फॉर्म नहीं करोगे जब तक आपकी लिमिट्स एक्सीड ना करने लग जाए। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसकी टर्नओवर 110 करोड़ थी, फिर कम हो गई 99, 95, 91, तो ये 100 करोड़ से तो कम ही है ना। और इसके जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 9.5 करोड़ ही चल रही है, जिसका मतलब है कि ना ही ये पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को एक्सीड कर रहा है, ना ही ये टर्नओवर की लिमिट को एक्सीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ये कंपनी है EFG, ये कंटिन्यू कर रही है अपनी ऑडिट कमेटी के साथ विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अर्लियर। तो क्या इस कंपनी के पास चॉइस थी कि ऑडिट कमेटी की अब फॉर्मेशन को ख़त्म कर सकती है? यस, इफ़ इट वांटेड, वो ऑडिट कमेटी को कंटिन्यू नहीं भी करना चाहती तो वो कर सकती थी। चलो लेट्स सी क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी बाय XYZ लिमिटेड, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन इज एप्लीकेबल? XYZ लिमिटेड इज नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। तो XYZ लिमिटेड क्या थी पहले देखते हैं। XYZ लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी थी
ऑफ एबीसी लिमिटेड, जो कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जिसकी लिमिट्स अगर हम देखें, लिमिट्स के हिसाब से क्या ऑडिट कमेटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सबकी बात कर लेते हैं, एबीसी को क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो पेड अप शेयर कैपिटल ही इसकी एक्सीड कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको सेक्शन याद है, सेक्शन 149 के अंदर भी लिखा हुआ है और सेक्शन 177 में भी दिया हुआ है कि अगर किसी भी कंपनी, किसी होल्डिंग कंपनी के अंदर, नॉट होल्डिंग, आप सिंपल याद करो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स एक्सीड कर रही हैं, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं और उसको ऑडिट कमेटी की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होता ऑन होली ओन्ड सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड डोरमेंट कंपनी। और यहाँ पर XYZ लिमिटेड क्या है, एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, किसकी, एबीसी की। तो एबीसी तो ऑलरेडी ऑडिट कमेटी बना रखी है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। XYZ बीइंग अ होली ओन्ड सब्सिडरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ना ही उसको ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है। आपको अगर याद आ रहे हैं प्रोविजंस, सेक्शन 177 के अंदर रूल दे रखा था जिसमें ये मेंशन था। सो ये वाला आपका गलत हो गया। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अबव द थ्रेशोल्ड XYZ इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। मोस्ट ऑफ दी लोगों ने आंसर इसमें बी करा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, सी। किसी को रूल याद होगा तो उसने ये आंसर टिक कर लिया होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बेसिस पर, सिंस एबीसी लिमिटेड हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स ऑडिट कमेटी, एबीसी लिमिटेड, XYZ Limited being a wholly owned subsidiary of ABC Limited is not required to constitute an audit committee। लेकिन अगर किसी ने ऑप्शंस रीड कर लिए होंगे ना चारों, तो वो शायद गलती करने से बच जाएं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन रीड करने के बाद आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि ये लाइन पढ़ के ना याद आ रहा है कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था सेक्शन के अंदर। तो इसीलिए ऑलवेज प्रेफर कि अगर आपको कोई आंसर सही भी लग रहा है ना, तो एक बार फिर भी अदर ऑप्शंस पर नज़र मार लो। कई बार क्या होता है, ऑप्शंस को रीड करने से ना कुछ चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं, कुछ हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करने वाले होते हैं, वो छोटी मिस्टेक्स करने से बच जाते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव रेड दी होल क्वेश्चन एंड दी ऑप्शंस। तो इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल और ऑलवेज गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस, जिससे कि अगर देखो कोई स्पेसिफिक है येस और नो वाला, येस और नो वाले में और आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, 100% श्योर हो, तो आप एलिमिनेशन यूज़ करके अपना काम खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से भी डाउटफुल हो या आपको लगता है आप गलती कमिट कर सकते हो, उसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो प्लीज़ एक बार सारे ऑप्शंस के साथ गो थ्रू कर लो और फिर डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस केस में आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर गलतियाँ हो सकती थी कि होली ओन्ड सब्सिडरी वाला पॉइंट मिस कर जाते, तो यहाँ पर भी लिख देते कि हाँ जी ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रही है, बट नो, XYZ Limited is not required to form the audit committee। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Is it permissible for EFG Limited to discontinue its audit committee? Permissible है ना। चलो, जिसके भी मैं आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम श्योर हैं, तो नो वाले ऑप्शंस हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। येस वाले ऑप्शंस हमारे पढ़ते हैं रीजंस। EFG Limited can discontinue its audit committee in the financial year 2021 since both the directors of ABC Limited have left the directorship। नहीं, yes, EFG can discontinue its audit committee in financial year 2021 since its turnover does not exceed 100 crores or more in the consecutive 3 financial years। करेक्ट आंसर है। चलो, suppose ABC Limited does not constitute vigil mechanism as required by section 177 subsection 9 of Companies Act। बनाई नहीं है विजिल मैकेनिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इज लेविएबल ऑन द कंपनी फॉर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस। तो देखो पेनल्टीज के क्वेश्चन में थोड़ा सा डर लगता है आंसर करने में, सबको लगता है, तो डोंट वरी। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पेनल्टी याद है तो बहुत बढ़िया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको पेनल्टी नहीं याद ना, तो कुछ नहीं कर सकते। देखो पेनल्टीज हम सारी की सारी याद नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी तुक्का मार के आंसर कर देना, ठीक है। तो पेनल्टीज के केस में वैसे इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलूँ तो पेनल्टी जो आपकी है वो कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो 1 लाख टू 5 लाख 5 लाख का फाइन होता है, 1 लाख टू 5 लाख। ऑफिसर्स के ऊपर 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन 25,000 टू 1 लाख, या फिर बोथ, इनमें से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे थे कि कंपनी के ऊपर बताना है, तो कंपनी के लिए 1 लाख टू 5 लाख इज दी फाइन। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में तो शायद ये क्वेश्चन पे तुक्का मारना पड़ेगा, बट यहाँ मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो आंसर आपका ये वाला नहीं है, 50,000 नहीं है, 1 लाख टू 5 लाख की लिमिट है, ठीक है। तो 10 लाख 25 नहीं, इसका करेक्ट आंसर फिर डी होगा। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 लाख टू 5 लाख, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डरना मत, पेनल्टीज के क्वेश्चन तो सभी से गलत होते हैं या सभी लोग तुक्का मारेंगे, तो डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दी पेनल्टी या यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दी पेनल्टी क्वेश्चंस। पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतनी सारी पेनल्टीज और फाइन्स याद करना, तो आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ सेबी वगैरह की कर लेना, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, ओके, सेक्शन 178, इसके अंदर क्या प्रोविजंस होते हैं कि मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स अगर होते हैं कंपनी के अंदर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है। किसको बनानी पड़ती है? बोर्ड को बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने हमें डिटेल दे रखी थी, 900 शेयर होल्डर्स हैं और 400 डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो टोटल कितने हो गया? 1300, 1000 से ज़्यादा है, तो यस स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके जो नो वाले ऑप्शन हैं उनको काट दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस सी, ABC Limited is required to form a stakeholders relationship committee since its shareholders and debenture holders are total up to 1300 और आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 100 की, नॉट 100,000 की, ठीक है। तो या दैट्स ऑल अबाउट दिस केस स्टडी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, ओके, स्टे हैप्पी, बाय बाय।